Namaste and good evening, everyone, to another webinar by Meradoc as part of our special series focusing on senior citizens and their healthcare concerns. To those that are joining us for the first time, welcome. And to those that have attended our previous sessions, welcome back. Meradoc is a healthcare delivery platform designed to place a general physician at the center of your healthcare needs. You can now connect to a doctor anytime, anywhere via phone or video call. You can also call our helpline to book an instant appointment 24/7, 365 days a year. Please go to meradoc.com to register, or you can also call 011 4084 9494 from a registered mobile number to book an appointment with our GP today. So let me move on and introduce you to our illustrious panel of eminent doctors and specialists who have graciously agreed to be a part of this webinar on senior citizens, a guide to health, fitness, and well-being. Our first panelist is Padma Shri Dr. Yash Gulati, a renowned orthopedic and spine surgeon. He has over 30 years of experience in his specialty and is currently practicing as senior consultant at Apollo Hospitals, India. Dr. Gulati has been awarded the Padma Shri Award in 2009, the Dr. B.C. Roy National Award in 2016, and the Ramesh Chandra Best Doctor Award for Service to the Elderly, to name a few. We welcome Dr. Gulati. Our second panelist is Dr. Rajiv Bhasin. He is a graduate from Maulana Azad Medical College, and he has over 30 years of experience in practice as a general physician in Delhi and NCR. He is also a practitioner of acupuncture and blends traditional, allopathic, and alternative medicine in his treatment protocols. Welcome, Dr. Bhasin. Hi. Our moderator for the evening, Mrs. Kiran Chopra. She needs no introduction to this group. She is the director of Punjab Kesari Publications and the chairperson of the Varish Nagrik Kesari Club of Senior Citizens, with branches all over India and close to 50,000 active members. We welcome you, Mrs. Chopra, once again. Thank you. Thank you. Our co-moderator, Dr. Renu Gulati, is Associate Professor at Delhi University School of Human Development and Childhood Studies. She has over 35 years of experience as an expert in adolescence, youth, and parenting. She has worked with UNICEF and chaired various NGOs working towards child development. She is also the head of the Green Park branch of the Varish Nagrik Kesari Club. Welcome, Dr. Gulati. So over to Mrs. Chopra and our panelists. Okay. Thank you, Dr. Mathur. आज बहुत अच्छा दिन है कि आपसे इंट्रोडक्शन हो गई है। मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर भसीन का और डॉक्टर यश गुलाटी का। यश गुलाटी अभी ऑन द वे है। डॉक्टर भसीन शायद मुझे नहीं जानते, मैं भी नहीं इनको जानती, पर मुझे एक बात बतानी है कि डॉक्टर भसीन का फोन मेरे फोन से बहुत मिक्स होता है। जो भी कोई कॉल आती है तो वो पहले पूछते हैं डॉक्टर भसीन, तो आज मुझे डॉक्टर भसीन को देखने का मौका मिला है। तो डॉक्टर भसीन, गुड इवनिंग, और आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे, यही उम्मीद है, क्योंकि अभी तक तो आपकी फोन कॉल ही मैं अटेंड कर रही थी। और आज डॉक्टर भसीन, आपसे हमारा मेन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका क्वेश्चन रहेगा, जो नया वेरिएंट आ रहा है जिसका ओमिक्रॉन, जिसका बहुत टेंशन है, सबको बहुत ज्यादा चिंता है कि क्या होने वाला है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रहनी चाहिए, क्या हमें सेफ्टी मेजर लेने चाहिए, ये कैसा है, क्या होने वाला है, अभी इसका मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया, ये सब सीनियर सिटीजन आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो उनको क्या करना है, घर पर रहकर क्या करना है, ये मोस्टली क्वेश्चंस होंगे। और डॉक्टर यश गुलाटी, मैं आपसे यही कहूंगी कि सीनियर सिटीजन, क्योंकि ठंडी बहुत है और बहुत मोस्टली सीनियर सिटीजन बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं या घर में स्लिप हो जाते हैं, आपको उनको भी आज गाइड करना है। और मेन हमारा मकसद जो है आज का वो यही है कि न्यू वेरिएंट के लिए एवरीवन इज वरीड कि क्या होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी ना हो, ये आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। अब आज का जो प्रोग्राम है उसको मॉडरेट डॉक्टर रेणु गुलाटी करेंगी, हमारी ब्रांच हेड भी हैं और आपने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन भी दी है। शी विल मॉडरेट द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच रेणु। Thank you. You can take. Okay. So, on behalf of Varish Nagrik Kesari Club, I would like to extend a very warm welcome to everybody. ये हमारे बहुत सारे हमारे members भी जुड़े हैं, उनके friends भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा डॉग को मैं करना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि उससे सबको बहुत नॉलेज भी मिल रही है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही है हमारे एल्डरली में कि उनके पास कोई है जिसको वो एकदम फोन कर सकते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मेरा डॉग
And Dr. Bhasin, it's going to be a pleasure listening to you. मैंने आपका बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले देखे हैं और बेस्ट पार्ट है कि ये होलिस्टिक मेडिसिन की बात करते हैं, ये सिर्फ एलोपैथी नहीं है, ये होलिस्टिक मेडिसिन की बात करते हैं. तो उसके लिए वेरी वेलकम डॉक्टर बसीन. तो लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम नाउ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. डॉक्टर यश गुलाटी ने ज्वाइन कर लिया अब, तो इनकी इंट्रोडक्शन पहले भी हो चुकी है. एंड पहले डॉक्टर बसीन बात कर रहे हैं, फिर डॉक्टर गुलाटी आपको बताएंगे कि इन दिनों में अपनी मूवमेंट को कैसे रखना है, अपनी बोन हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, और क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम गिरे नहीं. और बिकॉज एल्डरली में ये बहुत कॉमन है, बैक एक्स, गिरना, फ्रैक्चर्स होना, तो उसके बारे में बात करेंगे. वेरी वेलकम. किरण जी ने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं. We start. Welcome everybody, and thank you Meradoc for this honor and permitting us to address such a large number of people. Hello. Yes, sir. Please go ahead. Okay. So the biggest problem that the elderly have is an inability to get knowledge which is reliable and access to people without exposing themselves to the current pandemic and the virus. Meradoc provides you with that ability that sitting at home, you can not only get all the knowledge that you need, all your questions answered, but get access to the doctor without exposing yourself in any manner. As in any pandemic, the variants are going to keep coming. So it is because we have a very large and successful media that this is, coming across to everybody very fast. So in fact, so fast that even the doctors don't know much about it. However, what we do know is that this is very transmittable, and it generally is giving rise to milder disease. So for the people who are doubly vaccinated, who anyways get milder disease, this particular mutant should not be a very scary proposition. However, since you don't know what happens and when it happens, it is always better to prevent getting the disease. How to prevent? Basically, nothing has changed from the previous waves. Keep a distance from people. Don't come into contact with people unnecessarily where it is avoidable. Number two, wear a mask. And in the mask, it is very, very important to have a mask which is fitting properly. You can wear the best mask, but if it is leaking from the sides, then your protection is minimal. And most masks will have a clip here, which you must squeeze onto the nose. This will prevent fogging of your spectacles and prevent anybody from getting the disease from a patient, and you're getting the disease from anybody. The surface transmissions are very minimal, so too much of sanitizing, too much of thing is actually been proven to be a very minimal value. But what you do need is to keep a distance from people and utilize platforms like Meradoc to be able to get information and treatment as and when needed. For all other things, we are open to questions. Dr. Yash Gulati, please. You need to unmute, Dr. Gulati. Dr. Gulati, आप
आपको अनम्यूट Am I audible now? आपको अनम्यूट करना होगा Am I audible? नाउ। अब हाँ, अब नाउ। तो वैसे ही बहुत कम हमने। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, या कैन यू हियर मी नाउ? या I joined right in the beginning, but somehow there was no video. But I've joined right from the introduction part, so I know. Thank you for the kind introduction which was given. So, what would you like to say now? आपको हिंदी में आप प्लीज बताइए कि इनको बोन हेल्थ को कैसे लुक आफ्टर करना है। स्पेशली बहुत सारे लोग अब अंदर हैं, अंदर रहना पड़ रहा है कोविड की वजह से, तो अपने आप को कैसे लुक आफ्टर करें, किस और अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें फ्रैक्चर्स वगैरह से, बिकॉज बहुत ऑफन हो रहा है कि एल्डरली गिर जाते हैं और फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो हमारी बोन है ये कोई स्टील की रॉड की तरह डेड चीज नहीं है, ये एक जीवित है। इसमें रोज चीजें ऐड होती हैं, रोज चीजें निकलती हैं। तो रोज कैल्शियम डिपॉजिट होता है, रोज कैल्शियम निकलता है, और विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम को बोन के अंदर लेके आता है। तो ये सब चीजें अगर क्रिया अच्छी तरह चलती रहती है तो जो बोन है वो सुदृढ़ रहती है। यदि ये क्रिया किसी वजह से रुक जाए, या जो हमारा बोन का फ्रेमवर्क है, जैसे कि अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो जाली की तरह नजर आता है, तो यदि हमारा व्यायाम कम हो जाए, या किसी वजह से बिस्तर पे पड़ जाए, या कोई किसी को स्टीरॉइड ज्यादा लेने पड़ जाए, या बढ़ती उम्र के कारण जो हमारी हड्डी के जो रेशे होते हैं जिसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और बोन कमजोर हो जाती है। या हमारा अगर विटामिन डी कम हो जाए और कैल्शियम कम हो जाए तो भी बोन वीक हो जाती है। तो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक्टिविटी देखा आपने देखा होगा, जो लोग व्यायाम करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं उनकी मसल इतनी बड़ी बड़ी, व्यायाम नहीं करते हैं उनकी मसल धीरे धीरे पतली हो जाती है। तो यही ऐसा ही बोन में होता है। अगर हम चलते फिरते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो हमारी जो बोन है वो सुदृढ़ रहती है, स्ट्रांग रहती है। और अगर हम पड़ जाएं और सोचे जी हमारी एज बढ़ गई है, अब तो हम बैठे रहेंगे चेयर में, अब क्या करना है, क्या चलना है, कोई हमें खिला देगा, कोई हमें, तो सारी बोन भी वीक हो जाएंगी और अपने आप फ्रैक्चर हो जाते हैं। बोन इतनी कमजोर हो जाती है कि कई बार तो जैसे कूल्हे के आसपास अपने आप फ्रैक्चर हो जाता है, और अब गिरते बाद में फ्रैक्चर पहले होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम बाथरूम में फिसल गए, तो एक्चुअली होता क्या है कि फ्रैक्चर हो जाता है। बोन को स्ट्रॉन्ग रखने के सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपने आप को एक्टिव रखना, और उसके लिए जो कैल्शियम जिसको कमी है या विटामिन डी की कमी है उसके सप्लीमेंटेशन लेते रहें। और अगर बोन डेंसिटी टेस्ट करा के अगर किसी की बोन डेंसिटी कम है तो उसकी भी आप बड़ी सरल सी दवाइयां मिलती हैं वो लेते रहें। तो ये सब लेते रहेंगे तो आपकी जो बोन है वो सुदृढ़ रहेगी और आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होंगे। दूसरी बात है कि जो व्यवस्था में हम हैं कि अपने घरों के अंदर भी हमें ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि गिरने की संभावना कम रहे। जैसे बाथरूम है उसके जो टाइल्स हैं वो बिल्कुल नॉन स्लिप होनी चाहिए, थोड़ी खुरदरी। हमारा जो फर्नीचर है वो ऐसा होना चाहिए जो कोई पैर ना अटके, कहीं क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए। रूम में जो कारपेट्स हैं वो या तो ना हो या ऐसी जगह हो जिसमें पैर ना अटके। कमरे में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नॉन स्लिप होना चाहिए। आपके जूते ऐसे होने चाहिए जो अटके नहीं, सॉफ्ट जूते, और उसको आप पहन के चलें। और जिसको चलने में थोड़ी दिक्कत है वो स्टिक ले ले। ये बहुत आवश्यक है कि प्रिवेंशन ऑफ फॉल जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये बात हम समझ रहे हैं कि आप बाहर सैर के लिए लोग नहीं जा पाए, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो आप जा सकते हैं मास्क पहन के। अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, यानी कि जो कोविड बचने के लिए तो सैर के अपने घर
के अंदर तो रहने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ऐसे तो कोई निर्देश नहीं है सरकार के। तो आप बाहर जरूर जाएं, मास्क पहने और लोगों से डिस्टेंस बनाएं, हाथ वाथ ना मिलाएं, नमस्ते कर लें, गले ना मिले। तो ये सब चीजें करेंगे तो आप उधर कोरोना से भी बचेंगे, आपकी जो मांसपेशियां वो भी स्ट्रांग रहेंगी। कैल्शियम विटामिन लेते रहें, एक्टिविटी करते रहें, और घर में भी ऐसे इंतजाम करते रहें कि आपके जो है फॉल ना हो, गिरे नहीं। तो यदि फिर भी किसी को हो जाता है तो आजकल बहुत आधुनिक विधियां हैं, उसके अंदर हम उसको, अगर फ्रैक्चर हो जाता है किसी का फ्रैक्चर, उसको फिक्स कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जो फूले की बॉल टूट जाती है तो उसमें कोई घबराने की बात ही नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले बच जाए तो बेहतर है, और नहीं अगर हो जाए, कुछ हो गया तो उसका भी इलाज बड़ी अच्छी तरह से संभव है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, एक ना क्वेश्चन है हमारे मेंबर से कि मेरी राइट हैंड की पॉइंट फिंगर में, उन्होंने कहा है कि मेरी राइट हैंड की पॉइंट फिंगर में बहुत तेज दर्द होता है, प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। पॉइंट फिंगर का मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी फिंगर कह रहे हैं। अगर वो इंडेक्स फिंगर के बारे में कह रहे हैं या अंगूठा कह रहे हैं, तो कई बार रिस्ट के आसपास नस दब जाती है, जिसको मीडियन नर्व कहते हैं, या कार्पल टनल सिंड्रोम जिससे बोलते हैं, उसमें हो जाता है। तो या तो ये वो कह रहे हैं, या कई बार जो उंगली है वो ट्रिगर फिंगर के कारण अटक जाती है, या जिसको टीनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं, उसमें झिल्ली में सूजन आ जाती है। तो ये देख के पता लगेगा कि ये किस कारण इनको दर्द हो रही है, और उसी कारण का निदान करके उसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो आप अपने आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा लें या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा लें, तो आपको वो बता पाएंगे कि इसमें आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि मेरे लेफ्ट नी में और एंकल तक 15 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत है कि क्या कर सकते हैं? घबराना तो कभी भी नहीं चाहिए। इतनी सारी जो, अगर तो 5-10 दिन से 15 दिन से दर्द हो रही है और टांग में हो रही है, घुटने के अंदर नहीं है, तो वो मसल की पेन भी हो सकती है, या कभी कभी कोई नस दब रही हो स्पाइन में तो भी हो सकती है। कभी कभी घुटने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो भी घुटने के थोड़ी नीचे तक जा सकती है। लेकिन अगर दर्द एक्चुअली काफ में है और घुटने के नीचे या घुटने के अंदर नहीं है, तो नस के दर्द के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन 2 हफ्ते में ऐसा पैनिक करने की बात नहीं है, पैरासीटामोल वगैरह ले लें। और अगर उससे भी आराम नहीं आता तो फिर अपने आसपास के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको आप दिखा लें, तो उनसे फिर आपको वो बता पाएंगे कि भाई क्या कुछ करने की और जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा एक्सरसाइजेस के बारे में बता दीजिए कि एक्सरसाइज करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज तो देखिए ऐसी करनी है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें। पहले बहुत भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कोरोना टाइम पे एक वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे, और काफी, आप अगर डालें एक्सरसाइज मेरा नाम डाल के तो बड़ा अच्छा, वो 1.5-2 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट की गई है। काफी लोगों ने उस वक्त देखा था, तो वो आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, या अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपी से एक बार सलाह ले लिया भाई क्या एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली गर्दन की, कंधे की, लोअर बैक की, सबकी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो एक बार आप सीख लें तो फिर आप उसको लगातार करते रहिए। तो एक किस्म का योग है, तो जैसे योग की एक्सरसाइज है लगभग वैसी ही होती है एक्सरसाइज। तो जो लोग अच्छा योग कर लेते हैं वो वही करें, उनको और कोई एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज है ये लगभग योग की तरह ही है, तो उनको थोड़ा सा और साइंटिफिक बनाया गया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आराम से आप सीख के कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी हील में दर्द होता है। हाँ, वो प्लांटर फेशियाटिस होता है। तो उसमें जरा पहले, उठने से पहले एड़ी को रगड़े, और अपने एक सिलिकॉन हील पैड आता है वो शू के अपने हील के अंदर डालें, और एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में पैर को डालें 1-1 मिनट के लिए। और जो पीछे हमारी हील कॉर्ड होती है, जो टेंडोन एक्लिस होती है, उसकी स्ट्रेचिंग करें।
और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके भी अगर अल्ट्रासोनिक मसाज कर लेंगे तो और भी जल्दी इसमें आराम आ सकता है। इन सब चीजों से अगर आराम नहीं आए तो कभी कभी उसमें भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है। डॉक्टर भसीन, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या एक्यूपंक्चर का क्या रोल है पेन के लिए? एक्यूपंक्चर एक पूरा ट्रीटमेंट मोडालिटी है, जैसे एलोपैथी या होम्योपैथी, तो उसमें हर बीमारी का इलाज किया जाता है। पेन के लिए भी सारी पेन्स के लिए कहाँ का पेन है वो उस तरह से ट्रीटमेंट करा जा सकता है। सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाएं, अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, और बहुत ऐसे लोग हैं, तो रिस्क आपका किसी तरह के नुकसान का बहुत बहुत कम होता है। और पेन के लिए बहुत रिकमेंडेड इलाज है, इवन WHO इसको वो रिकग्नाइज करता है। और बहुत अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे अपनी पेन को चेक करें तो उसमें इनवेरिएबली एक्यूपंक्चर का नाम आएगा कि उससे ये हेल्प हो सकता है। बट ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने आप कर सके, जाना आपको किसी एक्यूपंक्चरिस्ट के पास ही पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है कि वॉक करने के बाद अगर बीपी थोड़ा हाई हो जाए और रेस्ट करने के बाद नॉर्मल हो जाए तो क्या ये हार्ट या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, ऐसा है, आपका बीपी एक कोई रिजिड लाइन नहीं होता। ये हमेशा भगवान ने बनाया ये है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो बीपी थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब आप रेस्ट करेंगे ये कम हो जाएगा। तो सैर करने में थोड़ा सा बढ़ना नॉर्मल होता है। क्वेश्चन ये है कि कितना बढ़ रहा है आपका। अगर कोई बहुत ही हाई लेवल्स पे जा रहा है तो ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और अगर अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। वैसे भी एल्डरली के अंदर थोड़ा सा हायर ब्लड प्रेशर हेल्पफुल होता है, तो 130/84-85 तक तो बिल्कुल नॉर्मल लेना चाहिए। यंगर लोगों में 110/70 नॉर्मल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि हाउ डू वी मैनेज द कोमॉर्बिडिटीज विद डिक्रीज इन एक्सरसाइज ड्यू टू कोविड? एनी एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मेजर्स? देखिए, कोविड की वजह से अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कोविड एक बड़ी रैंडम सी बीमारी है, और एनिमल वायरस होने के वजह से हमारी नॉलेज अभी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। इतना जरूर है कि दो सिचुएशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक लॉन्ग कोविड, जिसमें कोविड के जो नुकसान ब्लड में दिखते हैं, जो इन्फ्लेमेशन दिखती है, वो बहुत बहुत महीनों तक चल जाती है। और दूसरा वो है जो डैमेज इन्फ्लेमेशन की वजह से सबको होते हैं, जो पोस्ट कोविड में आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिवियर बीमारी होने वाले को ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोस्ट कोविड हो और माइल्ड वाले को बिल्कुल माइल्ड हो। कई माइल्ड वालों को भी बहुत लंबा चल जाता है और बहुत नुकसान कर रहा होता है। तो इसलिए आपको बहुत ही ग्रेडेड रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, यानी कि धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाएं, और जरूर पोस्ट कोविड सिचुएशन में डॉक्टर को मिलके और ब्लड टेस्ट करवा के ही आगे चलें। लेकिन सडनली बर्स्ट एक्टिविटी के बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एक्सरसाइज शुड बी इंक्रीज्ड इन अ वेरी ग्रेडेड मैनर। डॉक्टर गुलाटी, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी इस एज में अपनी लाइफ को कैसे बेटर किया जा सकता है? अपना मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही मैसेज हमेशा रहता है कि एक्टिविटी, आप एक्टिव रहें, सैर करें, चलते रहें, और जो अपनी आपकी हॉबीज हैं उनको फॉलो करें। जैसे अगर आप गोल्फ खेलते हैं, कई लोग इस एज में आके वो खेलें, आप अपने फ्रेंड्स को मिलने जाएं पार्क में। ऑफ कोर्स आज की डेट में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क पहन के, वो सारी
सावधानियां तो बरतनी है, उसके कहने की आवश्यकता नहीं है बार बार। और जितना ज्यादा आप चलेंगे फिरेंगे, जितने कम बैठेंगे एक जगह पे, उतने आपकी जो मांसपेशियां हैं और बोन स्ट्रांग रहेंगी। अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, खाना बैलेंस खाना है, अच्छे प्रोटीन खाएं और बैलेंस डाइट खाएं। और कई लोग क्या कहते हैं कि घी बिल्कुल बंद कर देते हैं, वो भी गलत है। ठीक मात्रा में जो बैलेंस डाइट है वो जरूर लें, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं और अपना हाई रफेज डाइट खाएं और अच्छी सैर करें। विटामिन डी अगर कम है तो उसकी टैबलेट लेने में कोई हर्ज नहीं है, कैल्शियम लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये सब आप लेंगे तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग रख सकेंगे। नहीं करेंगे तो फिर कई बार बोन वीक हो जाती है और फिर फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं। और नॉट ओनली बोन, मसल भी साथ में वीक होती है, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं, कि न केवल बोन बल्कि साथ में मसल वगैरह भी वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इन सबको सुदृढ़ रखने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप बस एक्टिव रहें, और एक अगर एक्टिव रहेंगे तो बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन है रेणु जी। हाँ जी, रेणु जी, I'd like to just mention one thing here. हाँ जी प्लीज। एक्चुअली ओल्ड एज में सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है लोनलीनेस की, और इस लोनलीनेस को एल्डरली लोग अपने पे इनवाइट करते हैं, मिलना जुलना कम कर देते हैं, अपनी कहानियां लेके बैठे रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप जैसे क्लब चला रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उस तरह के क्लब्स में एक्टिव होना भी अपने में एक हेल्दी रहना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करें, वो एक बहुत ही इमेंस एडवांटेज आपको मिलेगा अपनी हेल्थ के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए। गाना बजाना, म्यूजिक तो एक थेरेपी है, मैं मानती हूँ, और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमको पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिविटी लाना बहुत ही आवश्यक है। एक और क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने 2 डोजेस ले ली हैं और बूस्टर डोज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कुछ लोग घबरा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। देखिए जी, मेरा स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि वेट करिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के लिए। इधर उधर भाग दौड़ करके उल्टे सीधे काम ना करिए, ये कहीं नुकसान भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस पर रिसर्च कर रही है, और जब गवर्नमेंट गाइडलाइन होगी तो फिर उस वक्त जो है बहुत आसान हो जाएगा बूस्टर लेना। लेकिन अभी ये अंडर हैंड तरीके से कोशिश करके उल्टे सीधे काम ना करे जाएं तो बहुत अच्छा। और आप पूरा होलिस्टिक मेडिसिन में बिलीव करते हैं, तो आप प्रैक्टिस भी करते हैं और बहुत सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे। देखिए, होलिस्टिक मेडिसिन अपने में एक बड़ा वाइड सा टर्म है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एलोपैथी के जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। आपको जब तक पता ना हो कि आपने कहाँ जाना है, तो आप अपने घर से निकल के करेंगे क्या? आपको पता होता है ना आपने कहाँ जाना। उसी तरह से एलोपैथी के थ्रू डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कई चीजें टाइम देके अपने आप भी ठीक हो जाती हैं। आपको जरूरी नहीं है कि दवाइयां ही लेनी है और जोर जबरदस्ती घरेलू नुस्खों के बाद आगे जाना। सो इसको रिकग्नाइज करते हुए किस तरीके से आपको ट्रीट करा जाए, जो आपका मेंटल मेकअप है वो बहुत बहुत जरूरी पार्ट प्ले करता है आपकी इम्यूनिटी में। मैंने अपनी कोविड की ट्रीटमेंट्स में ये देखा, और मेरा 0.5% हॉस्पिटलाइजेशन का रिकॉर्ड रहा, और लिटरली मैं स्टैंड अप कॉमिक की तरह बिहेव करता था लोगों को, और अपने मरीजों को, उनकी फैमिलीज को हंसाता था। और उससे ये रिजल्ट हुआ कि बड़ी आसानी से लोग ठीक हुए। जो डरे और अस्पताल गए उनमें वो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिकग्नाइज करने का
कि आपका अपना एटीट्यूड आपकी इम्यूनिटी को बहुत इंप्रूव करता है। फिर कई चीजें हैं जिसमें आपको शायद होम्योपैथी, कईयों में आयुर्वेद, ऑलमोस्ट सारों में योगा का हेल्प, उसके बाद पिक एंड चूज करके कि किस चीज को किस चीज से इलाज करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियंस। अब ये सिर्फ कहना कि ये बाकी लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, ये बड़ा अनफेयर। तो मैं एक्यूपंक्चर से जो इलाज करता हूँ, आई पिक एंड चूज माय पेशेंट्स, और मेरे रिजल्ट्स इसीलिए चाइनीज से भी बेटर हैं, क्योंकि वो लोग सबका करते हैं, मैं उनका करता हूँ जिनके लिए बेस्ट एक्यूपंक्चर। पोस्ट कोविड में भी एक्यूपंक्चर का बड़ा रोल है, एंड वी हैव सक्सेसफुली हेल्प पीपल विद इट। दैट्स वेरी एनकरेजिंग डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर गुलाटी, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मेटफॉर्मिन मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट्स है, स्पेशली बोन्स और मसल्स के ऊपर? देखिए, मेटफॉर्मिन तो जो डायबिटीज के लिए ट्रीट होती है, तो इसका ऐसा तो कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है बोन और मसल के ऊपर। तो वो तो अगर जिसको डायबिटीज है तो उसको इट्स एक्चुअली ए वेरी गुड मेडिसिन, कोई मेजर इश्यू नहीं है इसके साथ। रेणु जी, इसको मैं लूं? हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा है, मेटफॉर्मिन बहुत और बीमारियों में भी यूज होनी शुरू हो गई। डायबिटीज का ये बेसिक मेडिसिन है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि नॉर्मल से नीचे नहीं लेके जाती है शुगर को, लेकिन इसका एक बड़ा ट्रबलसम नुकसान है जिसका हमेशा याद रखना चाहिए सबको, कि पेट की बीमारी हो सकती है इससे। एक मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड कोलाइटिस होता है जिसमें लूज मोशंस बहुत ज्यादा और बहुत तंग करने वाले हो जाते हैं। अगर हो तो ये दवाई बदलनी पड़ती। आजकल बहुत कंट्रीज में ये ओवर द काउंटर यूज होनी शुरू हो गई है दवाई, क्योंकि वेट लॉस के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस और उसके साथ होती हुई स्किन की बीमारियों के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो यंग लड़कियों में बीमारी होती है पीसीओडी के लिए, उनमें ये दवाइयाँ बहुत यूज होती हैं। तो ये याद रखना जरूरी है कि इसके साथ पेट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर हो तो आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से बात जरूर करिएगा। ये ना सोचें कि ये कुछ और ही चीज मेरे को बीमारी लगी। एक बेसिक मैसेज है कि दवाई अपने आप नहीं खानी शुरू करनी चाहिए, अपने डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर खानी चाहिए। हम कई बारी किसी से सुनकर दवाई खानी शुरू कर देते हैं, तो उससे हमको बचना होगा। और एक और है कि हाउ डज वन पिक अ प्रिवेंटिव हेल्थ प्लान। बहुत जगह होता है कि हम एक प्रिवेंटिव हेल्थ प्लान पिक करते हैं, और ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज पैकेजेस हैं, ये सब क्या है? कई बार बहुत सारे मेंबर्स को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे डिसाइड करें कि हमें कोई प्रिवेंटिव हेल्थ प्लान लेना चाहिए। यश, मैं लूं? हाँ जी, प्लीज प्लीज। अच्छा, सो रेणु जी, ऐसा है, ये प्लान जो होते हैं ये एक ट्रस्ट पे चलते हैं। आपको बेसिकली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करना पड़ता है किस अस्पताल में आप जाके करवाएंगे। उसके बाद बहुत लोग कहते हैं कि प्लान ये इतने महंगे हो जाते हैं कि आप सिंपली सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर का एक हेल्प लेके इस प्लान को डिवाइस करना चाहिए। और मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप मेरे डॉक्टर्स को बात करें कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अब हम साल में एक बार जो करना चाहते हैं वो कैसे करें। तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप अस्पताल में ही जाके ये करवाएं। आप अपने डॉक्टर के साथ एक बार एक कंप्लीट एग्जामिनेशन करवा लें, अच्छी लेबोरेटरी में आप लैब वर्क करवा लें, अच्छे जगह पे रेडियोलॉजी का टेस्ट करवा लें। आजकल अच्छी जो ये रेडियोलॉजी वाले लोग हैं वो कार्डियक चेक भी पूरा कर देते हैं। तो इसको करके आप अफोर्डेबल हेल्थ चेकअप कर सकते हैं और
आई थिंक मेरा डॉग का इसमें बहुत इमेंस रोल होगा कि वो हेल्प कर सके लोगों को कि क्या प्लान डिवाइस करना है। आप लोगों को बड़ी फ्रीली डॉक्टर के साथ बात करके अपनी जो करंट प्रॉब्लम्स हैं और जो आपके फियर्स हैं, देखिए हर आदमी का अपना एक फियर होता है। किसी के घर में कोई बीमारी हुई होती है, उसका डर आपके जहन में पड़ा है और आप उसकी बात भी किसी से नहीं करते। बेमतलब हर तीसरे महीने जाके आप लंबे लंबे टेस्ट करवाते रहते हैं, दिमाग में से डर आपका निकलता नहीं है। तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने डॉक्टर के साथ बात करें, अपने डर की खुल के बात करें और वो डिवाइस करें प्लान को जिससे आपका डर जल्दी से दूर हो सके। थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। डॉक्टर गुलाटी, एक क्वेश्चन है कि बोन डेंसिटोमेट्री कितनी ऑफन करानी चाहिए और कब करानी चाहिए? आप शायद आप म्यूट पर हैं कि बोन डेंसिटोमेट्री कितने ऑफन करानी चाहिए और कब? 50 साल की उम्र के बाद लेयर कराने का मौका मिल जाए तो अच्छा है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर 4-5 साल दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको सिम्टम्स हैं उनको जैसे वो अपने डॉक्टर ही एडवाइस कर देंगे कि आप बोन डेंसिटी करा लें। डॉक्टर गुलाटी, ऑन अ लाइटर नोट, आपने कब करवाई थी अपनी बोन डेंसिटोमेट्री लास्ट? शायद मेरे याद को नहीं अभी कोई जरूरत महसूस हुई नहीं और मेरी उम्र अभी 21 साल है तो मेरे को भी जरूरत नहीं। यस, तो यही बात मैं सबको कहना मैं आपको चाहूंगा। स्ट्रांगली, आपकी उम्र देखते हुए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आप करवा लीजिए। मैं तो हर 6 महीने में करवा रहा हूँ, मैंने बताया ना। तो मैं भी उन्हीं बूढ़ों में से हूँ जिनको डर लगता है कि हड्डी ना टूट जाए। आपने तो मेरे बहुत एक्सीडेंट देखे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने में तो कराना कोई मतलब जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। और क्योंकि ऐसा है कि अगर बोन डेंसिटी जिनकी कम भी हो उनको मेडिसिन भी दे दो फिर भी बोन तो इतनी जरूरत है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैं नहीं समझता इसकी जरूरत है। और मैं आपके साथ मजाक कर है वो रहा अपना था मेडिसिन ले। डॉक्टर गुलाटी, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, तो आप 21 कहते ऐसा हैं, ना हो मैं बाकी लोग 19 का ही रहा ना। फिर आपके पीछे पीछे तो चल रहा हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर भसीन बताइए, व्हाट आर द फूड्स दैट कैन गिव अस essential micronutrients like vitamin D, vitamin B12 in diet? क्या या हमको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है? देखिए, पहले इन 2 विटामिन की बात कर लेते हैं क्योंकि आपने शुरू, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये नॉर्मल विटामिन हैं। और कुछ हमारी वेजिटेरियन डाइट की वजह से एक इतनी सदियों से जो हमारे एंसेस्टर्स ने डाइट वेजिटेरियन ली है, तो हमारा B12 इनवेरिएबली लो होता है इंडियन डायस्पोरा। जो हमारे इंडियंस बाहर भी चले जाते हैं, यहाँ पे एक्सटेंसिवली नॉनवेज खाते हैं, उनके भी B12 लो ही रहते हैं। तो अक्लमंदी है इसको साल में एक बार तो चेक करके रेगुलर सप्लीमेंट कर लेना। D3 के बारे में मैं वैसे डॉक्टर यश गुलाटी के फील्ड में इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग ब्राउन है तो सन का एक्सपोजर हमें उतना हेल्प नहीं करता जितना व्हाइट्स को करता है। दूसरी बात, हमारे कल्चर में कपड़े पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम बहुत अपने को कवर करके रहते हैं, तो इसलिए सन का एक्सपोजर होता भी बहुत कम है। लास्टली गर्म होने की वजह से हम हर वक्त सूरज से दूरी भागे रहते हैं। तो इनवेरिएबली विटामिन डी को सप्लीमेंट ही करने की जरूरत होती है। तो टेस्ट करवाना साल में एक बार तो अक्लमंदी है। अब हम आ गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे डाइट में इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ओवर यूज होते हैं हमारी कंट्री में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनको बहुत प्रमोट करा गया था और ये देखा गया कि ये जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं अब वो हमारी डाइट में से ही खत्म हो गए, तो इनके टेस्ट बड़े मुश्किल होते हैं। अक्लमंदी ये है कि कोई एक मल्टीविटामिन आप मेरे डॉक्टर से बात करके उनसे अपना कोई मल्टीविटामिन ऐसा लें जिसमें आपको सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिल जाए। इन एडिशन ऑर्गेनिक फूड अगर आप लें, जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऑर्गेनिक ग्रो होते हैं, उनके साथ ट्रेस एलिमेंट्स रिलेटिवली आपको बेटर मिलेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, 5 कलर के रोज लेना अक्लमंदी होती है, ये सारे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। और मुश्किल बड़ा होता है 5 कलर, मेरे को तो पीला लाल हरे के बाद आगे कुछ दिखता ही नहीं है, तो ये रेनू जी बताएंगी हमें कि कौन से रंग के क्या मिलेगा हमें। और नहीं, एप्पल्स तो कहते हैं ना कि एप्पल्स खाने चाहिए, बनाना खाना चाहिए, पर वो तो बनाना रहा व्हाइट और रेड, बस अब बाकी कलर्स ढूंढने जाते हैं अभी हम। जामुन कहते हैं खाना अच्छा होता है। यस बहुत अच्छा होता है, फालसे और जामुन दोनों में। फालसा और जामुन तो एक्चुअली सीजनल फ्रूट अगर आप खाएं, सीजनल बिल्कुल। वेजिटेबल्स खाएं, ये टेंडेंसी हो गई है आजकल एक्सोटिक फ्रूट्स खाने की। बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो सीजनल फ्रूट आपको मिलता है लोकली ग्रोन, वो कहीं बेटर है देन जो इम्पोर्टेड और फ्रोजन सामान हमें Yeah. मार्केट में आजकल ज्यादा मिलना शुरू हो गया। एक्चुअली फ्रेश खाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी रोज कुक करके, रोज का फ्रूट जो है फ्रेश खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन है कि कौन से सिम्टम्स हो, कैसे सिम्टम्स हम महसूस करें, तब उसके बाद हम बोन डेंसिटी का टेस्ट कराएं। कैसे सिम्टम्स को हमको देखना चाहिए डॉक्टर गुलाटी? फिर वही बात है कि जिनको अनएक्सप्लेन पेन हो रही हो, मसल पेन हो रही हो, या जिसका फ्रैक्चर हो गया बहुत छोटी चोट के कारण, कमर में दर्द जिनकी लगातार चल रही हो, जिसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में बोन डेंसिटी चेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका अगर सर्जरी भी करें तो उसके बाद भी हम स्पेशल मेडिसिन देते हैं बोन डेंसिटी को रिस्टोर करने के लिए। तो ये चीजें तो बहुत आवश्यक है। और अनएक्सप्लेन पेन, और अगर आपको मसल पेन रहती है अनएक्सप्लेन, और प्लस एक पर्टिकुलर एज 60 साल के बाद तो एक बार बोन डेंसिटी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कम है तो उसकी एक टैबलेट लेनी है। ये कई एक महीने में एक बारी भी आती है या एक हफ्ते में एक बारी लेने वाली भी आती है। सिंपल इलाज है, कैल्शियम और विटामिन डी साथ में लेना है। तो अगर इतनी सिंपल इलाज है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए ताकि बाकी प्रॉब्लम ना हो। तो एक रूटीन टेस्ट है बोन डेंसिटी आफ्टर एज ऑफ 60, और एक अभी जैसे मैंने बताया अनएक्सप्लेन पेन है, या फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो गया, छोटी सी चोट के कारण फ्रैक्चर हो गया, जैसे रिस्ट इंजरीज हो जाती हैं, हिप इंजरीज हो जाती हैं, स्पाइन फ्रैक्चर, जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर जिसको हम कहते हैं कि वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर जिसको हो जाते हैं, छोटी छोटी हल्के हल्के माइक्रो फ्रैक्चर होते रहते हैं, कमर में दर्द होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में बोन डेंसिटी करना आवश्यक है, और टेस्ट के साथ मिला के वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे बाकी टेस्ट और क्या करने हैं। एक क्वेश्चन है, हम कहते हैं हल्दी, दूध और हल्दी पीना, दूध में हल्दी डालकर पीना बहुत इफेक्टिव है, तो हल्दी का क्या रोल है? डॉक्टर बसीन आप शायद बता सकेंगे हमें ये। देखिए जी, हमारे हिंदुस्तानियों की एक आदत है, अपनी अच्छी चीजें हम घर में इस्तेमाल करते हैं और अमेरिकन उसको पेटेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने हल्दी से करक्यूमिन बना लिया और 50-50 रुपए का कैप्सूल छोटा सा डाल के वो बेचते हैं, दुनिया खा रही है। हम लोगों में कुकिंग में हल्दी यूज होती है, और शायद एक ये कारण भी कहा जाता है कि हमारे हर्ब्स के यूजेज की वजह से इतनी पुअर कंट्री, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस के बावजूद हमारे कोविड से हम बहुत बचे रहे। पूरे धारावी में सिर्फ 2500 केस हुए थे कोविड के, तो शायद हल्दी का भी इसमें बहुत रोल है।
ओरल कैंसर्स में बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने एक देखा है, और वर्ल्ड ओवर लोग इसको कर रहे हैं। A2 काऊ घी के अंदर हल्दी का पेस्ट बना के मुंह के अंदर जो लीजन्स हैं, अर्ली कैंसर्स या प्री कैंसरस लीजन, उस पे लगाना, और हमने बड़े ग्रेट रिस्पॉन्स देखे हैं उसके साथ। तो लिटरली आपकी हर घर में दूध में हल्दी डाल के तो माओं ने हमें डंडा देके पिलाया हुआ। और अब डॉक्टर होने के बाद हम लोगों को, मैं तो एटलीस्ट मना नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि ये घरेलू इलाज जो है इनको जरूर ट्राई करिए, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और माँ भी खुश हो जाती है, और क्या चाहिए। डॉक्टर गुलाटी, क्या आपकी प्रैक्टिस में भी आपने देखा है कि लोग हल्दी लेते हैं और उससे फर्क पड़ता है? कोई आपका एक्सपीरियंस? मेरा मानना ये है कि हर साइंस में कुछ ना कुछ अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा होम्योपैथिक में वो थूसा देते हैं, वॉट्स डिसअपीयर हो जाते हैं, और ऐसी कई और मेडिसिन है वो जो बचपन से हम बिनक्शा ले रहे हैं, मलट्ठी ले रहे हैं गले के लिए। तो इन सब चीजों के अपने अपने फायदे हैं। अब हल्दी का मैं आपको एक एनेक्डोट बता सकता हूँ कि हमारे आगरा में कुछ फ्रेंड्स थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो इन सबको दर्दें शुरू हुई, तो इन्होंने हल्दी खानी शुरू करी और सब कहते हैं हमारी दर्दें कम हो गई। तो ऐसे ही रिसर्च होती है, ऐसे ही ओपिनियंस बनती हैं। तो मेरे ख्याल से हल्दी लेने में कोई हर्ज नहीं है, और मतलब हम तो रोज खाते ही है खाने में, और अगर आप दूध के साथ ले लें तो मुझे लगता है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू डेफिनेटली है और हम ले सकते हैं। और वैसे भी आई बिलीव इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल द साइंसेस। ये नहीं है कि मैं एक सर्जन हूँ एलोपैथी तो भाई डॉगमेटिक नहीं होना है, और चीजों में जहाँ फायदा है वो फायदा उठाना चाहिए। एक और क्वेश्चन है कि कैल्शियम के लिए अमरूद और शरीफा सबसे अच्छे होते हैं, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? अब जब होते हैं तो मेरे विचार क्या होंगे? होते हैं तो अच्छी बात। आपको मालूम होगा कुछ शरीफा और अमरूद। जी, मेरी अपनी एक्सपीरियंस में ना, ये मैंने देखा है कि अलग अलग घरों में अलग अलग बातें चलती हैं। आज जो अच्छा है वो साइंस कहती है अच्छा नहीं है, थोड़े सालों के बाद वो कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा था। तो आई थिंक टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको जो स्टैंडर्ड कैल्शियम की सोर्सेज हैं वो लीजिए। वो हमारी बॉडी में बहुत कैल्शियम है, बहुत कम लोगों को कैल्शियम रियली कम होता है। इट्स विटामिन डी जो हमें बहुत डैमेज करता है, कि कैल्शियम होने के बाद भी वो आप उसको यूटिलाइज नहीं करते, इट डजंट गो इनटू द बोन्स। अब अगर वेट ट्रेनिंग नहीं होगी, अगर आप हिले जिलेंगे नहीं, लेते रहिए जितने शरीफ है, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। एक और क्वेश्चन है कि एंटी एजिंग के लिए और रिजुविनेशन के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो ये डॉक्टर गुलाटी से पूछना पड़ेगा, 21 साल के तो वो हैं, हम तो। मैं इसका आंसर मैं दे सकता हूँ कि खुश रहना चाहिए, अपनी हॉबी फॉलो करनी चाहिए, और आप अपना जो जो आपकी हॉबी है उसको फॉलो करो, और सड़ो मत, अपनी बहू को मत डांटो, अपने बेटे से लड़ो, और अपनी जिंदगी में मस्त रहो और खुश रहोगे तो मैं कह रहा हूँ एज तो लंबी चलेगी। क्योंकि ये वही बात है, पॉजिटिव एनर्जी, एंडोर्फिन्स अच्छे निकलते हैं अगर आप अच्छा सोचते हो, और ये जितनी आप खुश रहोगे। देखो जो फिजिकल डिजीज आनी है, जो अगर लिखा हुआ जेनेटिक्स के अंदर, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नल को भी और इंटरनल एनवायरनमेंट। और इन सब चीजों को बहुत बहुत देखो, इम्यूनिटी किससे बनती है? ये नोन है कि हैप्पी पीपल हैव बेटर इम्यूनिटी। जो लोग अपना म्यूजिक करते हैं उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो एक वर्ड अगर आपको कहूंगा कि ट्राई एंड स्टे हैप्पी, और कुड़ो मत। कि अभी अगर जब हमारी एज 60 साल से जब ऊपर हो गई, हमने अपना जो रोल था कर लिया है, अब हमारा टाइम है एंजॉय करने का। तो जो है लेट्स एंजॉय लाइफ, और अपनी जिस चीज में खुशी मिले वही करो, जिस चीज में खुशी नहीं मिलती और नहीं करनी, और उससे अपने आप एज बढ़ेगी। अपनी हॉबी फॉलो करिए। जो लोग गोल्फ खेलें, जो अपने फ्रेंड से मिलके जिनको अच्छा लगता है वो अपने फ्रेंड्स को जाके मिले, जो उनको ताश खेलना अच्छा लगता है अपना
आपकी आवाज कट गई। पर एक और बात है कि मेरे हिसाब से तो बेसिकली मैं, हाँ जी, बेसिकली ये है कि लिव योर लाइफ नाउ, बिकॉज ये हमारे अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके अब हमारे जीवन शुरू हुआ है खुश रहने का। तो खुश रहेंगे तो लाइफ अपने आप बढ़ेगी। और ये आप कोई भी उम्र ऐसी नहीं है जब आप कुछ नया नहीं सीख सकते। जिस चीज में भी इंटरेस्ट हो तो आप कुछ नया कीजिए, नया सीखिए। और डॉक्टर भसीन, आप बताइए कुछ टिप्स आपने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो बड़ा एक सिंपल मानना है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जब हम स्कूल में थे तो मेरे प्रिंसिपल ने एक बात कही थी। He said, I have seen old people of 6 and young people of 60. तो उस 6 का तो मेरे को याद नहीं है इतना, लेकिन 60 पे I do not feel old yet because I only do what I enjoy and I enjoy what I do. अगर आदमी ग्रेसफुली एज करे तो 60, 70, 75 तो ये सिर्फ नंबर रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अब तो WHO भी कह रहे हैं कि 70 इयर्स तक मिडिल एज एंड ओल्ड एज स्टार्ट्स लेटर। तो हमारी लॉन्जिविटी भी बढ़ रही है। और अगर हम अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव रखें, एक्सरसाइज करें, तो आई एम श्योर हम लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, हम कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, म्यूजिक कराते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं, पोइट्री, जो भी लिखना, सुनना, पढ़ना, उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। तो प्लीज सब डॉक्टर्स ने भी यही कहा है, किरण जी भी यही कहती है कि खुश रहो, मस्त रहो और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लीजिए। तो और कोई लास्ट में कोई मैसेजेस आपके प्लीज जो आप हमारे मेंबर्स को देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो बड़ा सिंपल है जी, कि ये हमारी किस्मत है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी और टेलीफोनी की वजह से हमें मेरा डॉग जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करिए और तब आप रियलाइज करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट करा गया है। डॉक्टर बिल्कुल गुलाटी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर गुलाटी, आपका एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। स्लोगन है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, चीज। हेलो, आपका मैसेज हमारे। मेरा एक सिंपल एक लाइनर है मेरा कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बस यही जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर अदित माथुर, अब आप प्लीज टेक ओवर। Thank you Renu ma'am, thank you so much Dr. Bhasin and Dr. Gulati, thank you so much for joining us. It was a wonderful session. मुझे लग रहा है हमने काफी लोगों के काफी क्वेश्चन आंसर कर दिए। एक काफी पॉजिटिव आउटलुक लेके जा रहे हैं हम इस वेबिनार से अपने साथ, कि जितना पॉजिटिविटी अपने साथ लेके चलेंगे उतना हेल्दी रहेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। और डॉक्टर माथुर हैं अवेलेबल आपकी बात सुनने के लिए। जस्ट अ फोन कॉल अवे, तो और क्या चाहिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल, एनीवन एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू meradoc.com पे जाइए या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे बैठे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।